So are you able to see this photograph? Yes, sir. So this is the glass sponges, and this is known as Euplectella. And what is the beauty of Euplectella? It is given as marriage gift in Japan. Fine. It looks like a beautiful glassy flower vase. Again, it's so beautiful. Chaliye, so we will go ahead with our discussion. So we will complete Porifera today and we'll go to Nidaria. So in case of Porifera, we were discussing the reproductive system, and now we saw that in Porifera, two types of reproduction are reported. Asexual reproduction. So asexual reproduction takes place in 4 different ways. Number 1 is fragmentation. Number 2 is external budding. Number 3 is internal budding. And number 4 is reduction bodies. Similarly, sexual reproduction is by syngamy, which is also discussed as fusion of gametes. Now, fertilization, इसमें 2 अलग-अलग concepts है. Internal fertilization भी हो सकता है, external fertilization भी हो सकता है. And जो development है, it is indirect. Okay, so the development is indirect. The माने कौन? That actually there is a larval form. Okay, so this is what we have to discuss. Okay, so we will discuss that the fertilization is internal in these animals. Okay, now उसमें जो cleavage है वो holoblastic है. Development is indirect. Okay, now holoblastic cleavage means complete cleavage. Complete cleavage, comma, the egg is completely divided into 2 cells. Okay, because इसमें आपका yolk नहीं होगा. Okay, now development is indirect with 2 types of ciliated larval forms. Okay, indirect development का मतलब है there are intermediate forms, okay, between, okay, there are intermediate forms between egg and adult. Okay, तो उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. तो यहाँ किस तरह का इंटरमीडिएट फॉर्म है? लार्वा. सो व्हाट इज ए लार्वा? लार्वा का मतलब है has no resemblance. Okay, has no resemblance with parents. है ना? जैसे आपका जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर किसी भी एंगल में बटरफ्लाई जैसा नहीं दिखता है, तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ए लार्वा. तो इनमें 2 तरह का लार्वा रिपोर्टेड है. वन इज कॉल्ड योर हॉलो लार्वा. So hollow means it is not solid, and that is called amphiblastula. It is found in Sycon and Grantia. Solid larva जो है, that is called Parenchyma, which is found in Leucociliania and other sponges. ठीक है? So these are the properties with respect to the fertilization and development. Now, these poriferans, they are advanced above the protozoans, है कि नहीं? तो इसीलिए उनका हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांसमेंट. ओके, एडवांसमेंट ओवर प्रोटिस्ट्स. तो इसमें हाउ आर दे एडवांस्ड फ्रॉम प्रोटिस्ट? The sponges show advancement from protists in having a large multicellular body. जबकि प्रोटिस्ट में क्या होता है? आप लिख सकते हो प्रोटिस्ट
Okay, protists are generally unicellular. Okay, generally unicellular. Okay, उसी तरह से a great division of labor among the cells. इसमें अभी तो ये तो यूनिसेलुलर है तो डिवीजन ऑफ लेबर होने का सवाल ही नहीं. मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा आर प्रेजेंट. तो इसमें इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है प्रोटिस्टा में, वो इंडिविजुअल सेल्स हैं. ओके, एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जाइगोट बाय सेगमेंटेशन इंस्टेड ऑफ मियर ग्रोथ. ठीक है, अब ये सेगमेंटेशन छोटा छोटा डिवाइड कर करके नया एनिमल बन. ठीक है, सो दीज आर द एडवांसमेंट ऑफ अवर प्रोटिस्टा. जब भी हम कोई हायर फाइलम डिस्कस करेंगे उसके लोअर फाइलम से किस तरह से वो ज्यादा एडवांस्ड है उसको भी हम डिस्कस करेंगे. नाउ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा हम लिख सकते हैं इधर. क्लासिफिकेशन ऑफ पॉरीफेरा तो आप इधर लिख सकते हैं on the basis of nature of skeleton. तो एक्चुअली इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे होता है कि उसका स्केलेटन किस तरह का है. ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्केलेटन, है कि नहीं. सो ये उसका मेन बेसिस है. तो इधर हम लिख सकते हैं okay, so it is divided into 3 classes. एक्चुअली इन एनसीईआरटी आपका एक पैराग्राफ दिया हुआ है, बट प्रॉब्लम क्या है जब आप कोई भी अदर एग्जाम्स देंगे, एंट्रेंस देंगे, आकाश आइलैंड का टेस्ट देंगे, अकेले एनसीईआरटी से आपका मार्क्स आने वाला नहीं. सो दैट्स व्हाई हमें थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ता है. ओके, चलिए. सो इट्स डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. नाउ जो पहला क्लास है उसको हम लोग कहते हैं कैल्सीस्पॉन्जिए. ओके, क्लास नंबर 1 इज कैलकेरिया. कैलकेरिया और कैल्सीस्पॉन्जिए. ओके, कैल्सीस्पॉन्जिए. तो इसको हम लोग कहते हैं लैटिन भाषा में कैल्सिस. कैल्सिस मतलब लाइम. लाइम माने चूना. सो इसलिए इसका आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है? दे हैव कैलकेरियस स्पिक्यूल्स. ओके, तो ये उनका आइडेंटिफाइंग फीचर है. सो दे हैव कैलकेरियस स्पिक्यूल्स. ठीक है, इनका जो स्पिक्यूल्स है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना है. दे हैव कैलकेरियस स्पिक्यूल्स. उसके बाद जनरली ये जो है ओके, जनरली दीज आर फाइन. तो इसमें आपका जो स्केलेटन है, तो स्केलेटन ऑफ सेपरेट 1, 3 और 4 रेड कैलकेरियस स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ CaCO3. तो 4 रेड का मतलब याद है, कल हमने डिस्कस किया था मोनोएक्सॉन, ट्राइएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन. ओके, सो दिस इज द 1, 3. इसका वैसे 1, 3 और 4 रेड स्पिक्यूल्स भी लिख सकते हैं. ठीक है, जो बॉडी शेप है वो वास लाइक है. ओके, एंड इसमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा आपको? इसमें आपको एस्कोनॉइड, साइकोनॉइड या ल्यूकोनॉइड तीनों टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलेगा. एंड ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, मतलब इसमें कोई भी फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है. अंडरस्टैंड? तो उसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेंगे ल्यूकोसोलेनिया, साइकॉन
साइकॉन का एक और नाम है स्काइफा। ठीक है, सो इसका एक और नाम है स्काइफा। चलिए, तो ये आपका हो गया कैलकेरिया के बारे में। साइज बड़ा करने से रहेगा ना, चला जा रहा है, तो वी विल डिक्रीज द साइज। एक्चुअली नो 16 साइज ऑप्शन। चलिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड कैटेगरी। तो सेकंड कैटेगरी है, उसका नाम है हेक्स एक्टिनेलिडा और हाइलो स्पॉन्जिए। अंडरस्टैंड नाउ, इन ग्रीक भाषा हेक्सा मीन्स 6 प्लस एक्टिन। हम लोग यहाँ उस दिन डिस्कस किए थे, एक्टिन मतलब शार्प, है कि नहीं? तो हेक्सैक्टिन, इसमें हेक्सैक्टिन स्पीक्यूल्स होगा। उसी तरह लैटिन भाषा में हायालॉस का मतलब होता है ग्लासी प्लस स्पॉन्ज। ओके, तो इनको हम लोग कॉमनली known as क्या, glass sponges। so commonly known as glass sponges, तो इनको हम लोग glass sponges बोलते हैं। एंड इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्या, प्रेजेंस। ओके, प्रेजेंस, presence of hexactin triaxon spicules made up of silica, है कि नहीं? तो ये उसका मेन फीचर है। ओके, नाउ दीज आर डीप सी स्पॉन्जेस। ये आपको डीप सी में मिलते हैं, ये शैलो सी में नहीं मिलता। इधर आप लिख सकते हो शैलो सी। सो दीज आर डीप सी स्पॉन्जेस। नाउ इसमें आपका जो आउटर स्केलेटन जो है वो नहीं होगा। ठीक है जी, तो इसमें जो है सो नो डर्मल एपिथेलियम और एक्सोपिनाकोडर्म। ओके, इसमें एक्सोपिनाकोडर्म नहीं होगा। चल, सो इसमें देयर इज नो एक्सोपिनाकोडर्म। लगा, इसको उड़ा दे। एक्सेप्टनेलिडा और हायालो स्पॉन्जिए। ओके, तो इन ग्रीक हेक्सा मीन्स 6 प्लस एक्टिन मीन्स शार्प। ओके, तो एक्टिन मीन्स शार्प। ओके, सो उधर आप लिख सकते हो इन लैटिन भाषा हायालॉस मीन्स क्या, ग्लास प्लस स्पॉन्ज। ठीक है, सो ये आपका जो है, तो इधर हम लोग लिख सकते हैं ओके, तो दीज आर मॉडरेट साइड स्पॉन्जेस, माने वो ज्यादा बड़े भी नहीं है। ओके, नाउ बॉडी शेप जो है वो कप, आर्म और वेस्ट लाइक है। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ओके, याद रखना, सी डॉट एफ डॉट का मतलब है कैरेक्टरिस्टिक फीचर। स्केलेटन ऑफ 6 थ्रेड
ट्रायक्सॉन सिलिशियस स्पिक्यूल्स मेड अप ऑफ सिलिका। ठीक है, सो ये आपका हो गया। और बढ़ा दें, क्लियर। नो डर्मल एपिथेलियम और एक्सोपिनाकोडर्म, इसमें कोई भी एक्सोपिनाकोडर्म नहीं होगा। इसमें कोआनोसाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू फिंगर शेप्ड चैम्बर्स। ओके, फिंगर शेप्ड चैम्बर्स, सो ड्यू टू फोल्डिंग ऑफ बॉडी वॉल, इसीलिए ल्यूकोनॉइड होता है। ओके, सो देयरफॉर दे आर ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस। ओके, साइकोनॉइड भी लिख सकते हो, साइकोनॉइड और ल्यूकोनॉइड स्पॉन्जेस। नाउ ये एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, मीन्स इसका फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं मिलता। ओके, मेनली इन डीप सी। इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ओके, जो हमने लिखा था हायालोनीमा, इसको कहते हैं ग्लास रोप स्पॉन्ज। उसी तरह हम लिख सकते हैं यूप्लेक्टेला। ओके, इसको आप लिखेंगे वीनसेस फ्लावर बास्केट। तो वीनस इज गॉड ऑफ लव एक्चुअली। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान। ओके, इसका मतलब होता है टिल डेथ अस डू पार्ट। ओके, इसका मतलब है मरते दम तक हम जुदा नहीं होंगे, डाइवोर्स नहीं देंगे। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूप्लेक्टेला। इसीलिए जब आप जापान में कोई शादी करता है तो उसके दोस्त लाके उनको यूप्लेक्टेला गिफ्ट में देते हैं। तो आप बोलोगे यार ये जानवर उठा के दे दिए। नो, इट लुक्स लाइक ए ब्यूटीफुल फ्लावर वेस, इसीलिए वो उतना भी बुरा गिफ्ट नहीं है। ओके, इट्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट। ओके, चलिए, तो उसके बाद हमारा जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड डेमोस्पॉन्जिए। ओके, नंबर 3 इज डेमोस्पॉन्जिए। नाउ डिमास मतलब फ्रेम या होल बॉडी। ओके, प्लस स्पॉन्ज, जस्ट मीन्स स्पॉन्ज। तो इसीलिए दे आर स्मॉल टू लार्ज साइज सॉलिटरी और कॉलोनियल स्पॉन्जेस। बॉडी आपका वेस्ट लाइक होगा, कप लाइक हो सकता है, कुशन लाइक हो सकता है कि नहीं? ना, उसके बाद जो स्केलेटन है, इसमें आपका स्केलेटन इज मेड up of spongin fibers. ओके, जनरली स्पॉन्जिन फाइबर्स होता है। ओके, फुल सेमीकोलन, नो स्पिक्यूल्स। ओके, जनरली इसमें स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, बट इफ स्पिक्यूल्स प्रेजेंट, अगर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, if spicules present, okay, they are siliceous, okay, made up of silica। समझ रहे हो? तो एक्चुअली इनमें जनरली इनके बॉडी में आपका स्पिक्यूल नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो सिलिशियस। ओके, नाउ अगर सिलिशियस स्पिक्यूल मिला तो स्पिक्यूल्स मोनोएक्सॉन, टेट्राएक्सॉन, बट नेवर हेक्सैक्टिन ट्राइएक्सॉन। तो ये हेक्सैक्टिन ट्राइएक्सॉन कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इसके पहले क्लास का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो नेवर हेक्सैक्टिन ट्राइएक्सॉन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैनाल सिस्टम ल्यूकॉन टाइप होता है। इनमें ल्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम
in adults and ragon type in larva. ओके, तो लार्वा में आपका रैगॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम मिलता है। ठीक है, कोआनोसाइट्स रेस्ट्रिक्टेड टू स्मॉल राउंडेड स्मॉल, इसको आप स्फेरिकल चैम्बर्स बोल सकते हो। ओके, स्फेरिकल चैम्बर्स, क्लियर। कोआनोसाइट्स आर रिड्यूस्ड टू स्मॉल स्फेरिकल चैम्बर्स। नाउ ऑल मैराइन, इसमें जनरली मैराइन होंगे, all are marine except one freshwater family called Spongilidae। तो उसका एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला एंड एफिडाटिया। इसको आप फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस कह सकते हो। सो दे आर कॉल्ड फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस। हो गया। So this is the 3 different classes of your sponges. Bale bale. In Demospongia, we will have a lot of examples. Okay, so वो मैं आपको लिखाऊंगा। Now main चीज क्या है, इसका जो कॉमन नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद आना चाहिए। So you should know there are lot of sponges and उसमें बहुत सारा कॉमन नेम जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसमें हम लोग लिखेंगे, ओके, तो इंपॉर्टेंट स्पॉन्जेस एंड देयर कॉमन नेम्स। तो ये आपका जूलॉजिकल नेम हो गया एंड ये कॉमन नेम है। तो सपोज ल्यूकोसोलेनिया, उसको हम लोग कहते हैं पाइप स्पॉन्ज। Okay, now similarly Sycon is called unsponge. Okay, Euplectella Venus's flower basket, Hieronyma glass rope sponge. Okay, इसको थोड़ा इस तरह, फाइन। सो ये आपका कॉमन नेम्स हो गया। उसके बाद क्लियोना, ये बोरिंग स्पॉन्ज है। ये सब्जेक्ट बोरिंग वाला नहीं, ये इट बोर्स थ्रू सॉइल, उसको छेद करने में यूज होता है। हेलिकॉन्ड्रिया, इसको ब्रेड क्रम्ब स्पॉन्ज बोलते हैं, ये ब्रेड क्रम्ब जैसा होता है। चलीना, दिस इज मरमेड्स ग्लव्स और डेड मैन्स फिंगर। हेलिक्लोना, दिस इज फिंगर स्पॉन्ज। स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर, एफिडाटिया फ्रेश वाटर, है कि नहीं। नाउ यूस्पॉन्जिया जो है ये आपका बाथ स्पॉन्ज है। ओके, इवन स्पॉन्जिया ऑफिसिनालिस, Spongia officinalis, that is also Turkish bath sponge. Turkish bath sponge. Phylospongia leaf sponge. Hippospongia horse sponge, used to clean horses. Yersinia horny sponge. And Poterion is Neptune's goblet. ओके, सो इसको हम लोग नेपच्यून्स गॉबलेट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कॉपी पेस्ट बहुत मुश्किल हो गया। So these are the various important sponges. Now इधर इनके बारे में कुछ स्टोरीज हम लिख सकते हैं। जो आपका वीनस फ्लावर बास्केट है, इसमें एक खूबसूरत सा स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तो दिस इज कॉल्ड क्या मैंने, when
the sponge is young, two shrimps. Okay, when the sponge is young, two shrimps enter into the sponge body. तो वो गाना गाते हैं, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाए, दूर स्पॉन्ज के अंदर जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। समझ रहे हो? तो वैसे गाना गाकर वो वीनस फ्लावर बास्केट के अंदर घुस जाते हैं। ओके, टू श्रिम्प्स, उसका नाम है स्पॉन्जिकोला वेनस्टा। ओके, श्रिम्प इज अ टाइप ऑफ चिंगुड़ी। ओके, तो ये जो श्रिम्प्स है, ये स्पॉन्जिकोला वेनस्टा, ये इसके अंदर घुस जाता है एंड उसके बॉडी में रहता है। एंटर इनटू द स्पॉन्ज बॉडी, फुल स्टॉप, विथ ग्रोथ। जैसे जैसे स्पॉन्ज बड़ा होता है, विथ ग्रोथ, ओके, विथ ग्रोथ, नाउ विथ ग्रोथ क्या होता है? द साइज ऑफ द श्रिम्प्स इंक्रीजेस, बट जो ये जो चिंगुड़ी है वो बड़ा हो जाता है, बट द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द स्पॉन्ज decreases, so they are trapped inside the sponge, okay, for their whole life. Okay, so hence इसका मतलब क्या है? hence इसका मतलब है till death us do part, मतलब मरते दम तक हम जुदा नहीं होंगे। ओके, सो दिस इज द स्टोरी। ओके, तो इसलिए जैसे वो स्पॉन्ज बड़ा हो रहा है, वो क्या करता है, वो उसका पोर साइज छोटा हो जाता है, जबकि चिंगुड़ी बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए वो लोग मरते दम तक साथ रहते हैं। ओके, ओके, सो टिल डेथ अस डू पार्ट। ओके, तो इसीलिए सो दे आर गिवन एज मैरिज गिफ्ट इन जापान, है ना? तो उनको मैरिज गिफ्ट क्यों देते हैं? ये सिग्निफाई करने के लिए कि जिंदगी भर जब शादी कर रहे हो, जिंदगी भर साथ रहना, डाइवोर्स नहीं देना। अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, नाउ ये जो बाथ स्पॉन्जेस है, आपको जानते हो दैट इन बाथ स्पॉन्जेस क्या होगा? There are no spicules. ओके, तो बाथ स्पॉन्जेस में स्पिक्यूल्स नहीं होता है। There are no spicules. ठीक है? So this is the beauty of this category. हो गया? चलिए, सो उसके बाद चलिए, सो नाउ आई विल शो यू सम ब्यूटिफुल स्पॉन्जेस। सो कैन यू सी दिस ड्राइंग्स? ये दिख रहा है आपको? नो सर। नो सर। क्यों नहीं दिखा? सॉरी बोलो। ये दिखा? यस सर। यस सर। तो these are Yes, beautiful, sir. ये स्पॉन्जेस हैं,
ये ग्रीन स्पॉन्ज है आपका जो स्पॉन्जिला। ओके, दिस इज कौन सा स्पॉन्ज बताइए? ये किस जैसा दिख रहा है? कांच जैसा दिख रहा है। सो दिस इज योर यूप्लेक्टेला। ओके, सो दीज आर यूप्लेक्टेला। अगेन दिस इज ऑल्सो यूप्लेक्टेला। देख रहे हो उसका पोर साइज? तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसका पोर साइज जो है वो छोटा होता होता जाएगा। ये किस जैसा दिख रहा है आपको? ब्रेन। यस, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? दिस इज मियांड्रिना, ब्रेन कोरल। एक्चुअली ये निडारिया का एग्जांपल है, नॉट स्पॉन्जेस। फाइन। सो ये स्पॉन्ज है, ये आपका स्पॉन्जिला है, ग्रीन स्पॉन्ज। दिस इज मियांड्रिना, ये आपका कोरल है। सो देख रहे हो, दिस इज चलियाना, तो पान की दुकान पे। तो चलीना जो है वो मरमेड्स ग्लव्स है। क्यों मालूम है? वो इतना हार्ड होता है जैसे आपका जो डेड मैन्स फिंगर। तो इट इज कॉल्ड डेड मैन्स फिंगर। और ये देख रहे हो, सो दिस इज कॉल्ड डेड मैन्स फिंगर। ये छोटे छोटे स्पॉन्जेस देख रहे हो, ये बलून जैसे, ये देखिए, दे आर ऑल स्पॉन्जेस। ये colonial sponge है। And all these big holes are what? They are osculum. Okay. ये यूप्लेक्टेला, so beautiful. So ये आपका ड्राइड स्पॉन्जेस है जो दुकान में मिलता है जापान वेपान में नहाने के लिए। Okay, see this is sponge colony. Okay, the beautiful sponges. ये हाइलोनिमा देख रहे हो, ये है हाइलोनिमा। दिस इज द ड्राइंग एंड दिस इज द एक्चुअल। ओके, दिस इज अ हाइलोनिमा। फाइन। तो ये आपके अलग अलग स्पॉन्जेस हैं। दिस इज योर ग्रीन स्पॉन्ज, देख रहे हो। ओके, so these are, see, this is a human dead body, जिस पे स्पॉन्ज उगते हैं। ओके, चलिए, so this is all about your sponges. Now I will take a small test on sponges. Okay, आपका एक छोटा सा टेस्ट I will take today. I will send a questions. जो गूगल फॉर्म में आपके मोबाइल में क्वेश्चंस मिलेगा, तो उसको आप कर लेना। ओके, आज मैं भेजूंगा, आप कल भी दे सकते हो, मैं उसमें टाइम लिमिट नहीं देता हूं। तो यू कैन गिव द एग्जाम एंड सेंड द मार्क्स टू माय पर्सनल नंबर। डोंट सेंड इट इन द ग्रुप, वो बल्कि होने लगता है। ओके, रेडी? सो उसके बाद जो हमारा सेकेंड फाइलम है, दैट इज कॉल्ड निडारिया। ओके, सो जो सेकेंड फाइलम है एक्चुअली उसको हम लोग कहते हैं निडारिया या सिलेंटरेटा। पहले एक्चुअली अर्लियर। Sir, बोलो। sir, may you please show me that previous page because I left automatically from this group as my battery becomes 0%. So you can always see the website. मैं जो YouTube वीडियो I will send. Okay, आराम से देखो। Okay, See, sir. Okay, sir. जब भी आप कोई क्लास मिस करते हैं, डरने का कोई जरूरत नहीं है। मैं उन क्लासेस को YouTube में अपलोड करके लिंक भेज देता हूं। सपोज आपको लिंक नहीं मिलता है, आप सिंपली जाएंगे YouTube में, सर्च में JJS सर करके एंटर मार देना, तो उसमें वीडियोस होगा बहुत सारा। तो आप उसमें आप घुस जाना उसमें एंड प्लेलिस्ट में सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। ओके, पूरा का पूरा वीडियो रखा है, आराम से बैठ के स्टडी करो, ठीक है। एंड उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मजेदार एंजॉय करो एंड शेयर। फाइन। सो एवरी वीडियो इज देयर, हर चीज जो क्लास में है। तो एनीबॉडी हु मिसेस द क्लास ड्यू टू एनी रीजन, देयर इज नथिंग टू पैनिक। ओके, चलिए, तो नाउ सिलेंट्रेट का जो मतलब है सिला, सिला का मतलब है कैविटी। ओके, प्लस एंटेरॉन का मतलब होता है डाइजेस्टिव
सिस्टम प्लस ओएटा जो सफिक्स है, कि सफिक्स ओएटा का मतलब होता है बियरिंग। ओके, तो इसीलिए सिलेंट्रेटा का मतलब क्या है? सो देयरफॉर इन एनिमल्स को हम लोग क्या कहते हैं? दे आर नोन एज सिलेंटेरॉन bearing animals. Okay, सिलेंट्रॉन bearing animals. Now अगर इन एनिमल्स को आप देखोगे आपको लगेगा कि भाई ये तो स्पॉन्ज ही है, बट इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें जो डिफरेंस है, बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक। तो ब्लाइंड सैक का मतलब क्या है? बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक, दैट इज, इसका मीनिंग है बॉडी हैज ए सिंगल ओपनिंग, बॉडी हैज ए सिंगल ओपनिंग एंड इट इज नोन एज क्या? माउथ, और आप उसको एनस भी बोल सकते हैं। फाइन, तो बॉडी प्लान तक ना होना आपको जियो को नहीं जा। So body plan is no, okay, body इसको लेके जाओ। तो जो बॉडी है जो सिंगल ओपनिंग नोन एज माउथ, तो आप उसी को एनस बोल सकते हो। Why? Because there is a single opening, है कि नहीं? तो इसको और नहीं लिखना चाहिए। Also functions as anus if at all, ठीक है? तो ये also functions as anus if at all, माने अगर चाहिए, अगर आपको कुछ फेंकना है तो ये माउथ से ही फेंकना पड़ेगा। So these are called coelenteron bearing animals. Now तो ये उसका जनरल फीचर